Hey guys, I hope everyone's doing good. Welcome to Law and More, and this is the next tutorial for upcoming UGC NET June 2020 exam. And for now we are covering the general paper of teaching aptitude. Till now we have already covered first, second and the fourth part of the teaching aptitude. Today we'll be starting with the third part of the teaching aptitude. The third one, fifth and sixth, these are the three ones which are left, so let's try to finish that up very soon. The third one deals with the factors affecting teaching, and these factors are related to teacher, learner, support material, instructional facilities, learning environment and institution. तो कौन कौन से factors हैं जो teaching को affect करते हैं? We have to study about them specifically in the light of these 6 subheadings which have been given by the UGC NET syllabus. So let's try to understand कि वो ये टॉपिक का मतलब क्या है and what is the relevance in the UGC NET paper. फर्स्ट यूनिट में हमने देख लिया टीचर कौन होता है, टीचर का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, टीचर के अलग अलग मेथडोलॉजीज़ क्या होते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, टीचिंग के क्या क्या लेवल्स होते हैं, लर्नर किस किस प्रकार के होते हैं, लर्नर किस किस तरीके से चीज़ों को समझ सकते हैं, किस किस चीज़ों से अफेक्ट होते हैं. दिस इज़ व्हाट वी हैव सीन. नाउ वी कमिंग टू अ बिगर पिक्चर. So it's like somebody is already teaching, like I'm already teaching you. Now what are the factors which can affect this flow of information? So of course, one, I take the responsibility of delivering the lectures. So there are a lot of things about me which might affect the whole teaching process. For instance, my background, my knowledge, my way of communication. Similarly, even on your part, there could be a lot of factors which can affect the whole teaching process. And it's not just about you or I, it's also about different facilities like internet, like the mobile phone, maybe the computer, maybe the books I'm referring to. There are a lot of factors which are involved which directly or indirectly affect the teaching methodology. So this is exactly what we're going to be covering in unit number 3. Now here also it's a very general concept. तो अगर हम हर एक अलग अलग point को imagine करेंगे and then we understand it, then in the paper you'll be able to crack, right? So you'll be able to give the correct answer, because once you start imagining things you can always come up with the most appropriate answer. Now let's start with the first one. So the first, it says teacher. टीचर के पार्ट पे ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिससे टीचिंग अफेक्ट हो सकती है. अब हम ये जो क्लासेस चल रही हैं, ट्यूटोरियल्स, इफ़ यू आर वाचिंग माय वीडियो, व्हाट आर द थिंग्स अबाउट मी which can you think affect the whole teaching process? I'll begin with first, my faith. So while I'm making this video, if I have the firm faith that whoever is watching it is actually watching it with great seriousness, the same seriousness जिसके साथ मैं वीडियो बना रही हूँ. So if I have the faith कि जो भी बच्चे इसको देख रहे हैं वीडियो को, they are actually serious, they are actually making their notes, they are listening to each and every point, they are very serious about themselves, they are really going to clear the paper. So this faith makes a lot of difference. So if I have that faith, मेरी टीचिंग में वो चीज़ आपको रिफ्लेक्ट होगी, एंड द सेम वाइब्रेशंस माइट ट्रैवल टू यू ऑल्सो. सो दैट इज़ द फर्स्ट थिंग विच अफेक्ट्स द होल प्रोसेस ऑफ टीचिंग. सेकेंड इज टीचर्स बिलीफ सिस्टम. सो इफ माई बिलीफ सिस्टम इज दिस कि जिसको देखनी है देख लेंगे, जिसको पढ़ना है पढ़ लेंगे, मुझे तो पॉपुलर होना है, मुझे तो व्यूअर्स चाहिए. सो इफ दैट इज़ माई बिलीफ सिस्टम, डू यू थिंक दैट आई विल बी एबल टू हैव एनी इम्पैक्ट अपॉन यू? नो, आई विल नॉट बी. सो इट flows from the teacher. So if I have firm faith, if my belief system is that whoever tries really hard will be able to get through the paper, whoever tries hard in the life will be able to get through any situation. So if I have that kind of a positive belief system, the same I'm going to give it to you as well through my teaching. So that's the second way by which teachers characteristic might affect the whole teaching process. Third, we can take example, of course, my knowledge. So any teacher's knowledge, but here in this example, my knowledge. तो अगर मैं चीज़ों को खुद ही नहीं पढ़ के बैठी, अगर मुझे नॉलेज ही नहीं है और मैं आपको पढ़ा रही हूँ किसी चीज़ के बारे में, फॉर इंस्टेंस आप मुझे बोलो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में अभी पढ़ाइए, मुझे उसके बारे में नॉलेज नहीं है टू दैट लेवल जो होनी चाहिए किसी को पढ़ाने के लिए. सो द टीचिंग won't be very productive. It will not really have good impact as it should have. So that's another factor. Then you can talk about ability to maintain discipline. So if I have say 20 students in my class, like when I go to college, I have 40 students also at times. They're all grown ups, 24, 25 years of age. So if I do not have enough control over them, I'm glad that I do have
then if I'm not able to maintain discipline in my class, of course my teaching will not be effective as it should be. Similarly, my activeness. So if I'm entering the class being very lazy, even in the video, if I do not look or sound active, then the teaching is not going to be very effective. Then adaptability. It's a very important point, because there are some teachers, in fact most of the teachers, especially at the college level, because they're all grown-ups, they don't really want to get adapted as per their students' needs. So students nowadays are are very active, they're very knowledgeable, so they know about things probably even you don't even know about them, right? So you have to go to their level at times, you have to laugh out with them. So I think every teacher has to get adapted nowadays, considering the times, considering the intellect level of the students. तो अगर आप अडेप्ट ही नहीं कर रहे हो बच्चों के हिसाब से अपने आप को, आप कह रहे हो भैया हम तो टीचर हैं, हम जो बोलेंगे बच्चा वही सुनेगा. So 50 minutes every student supposed to be sitting like this, so that's not going to happen. So adaptability on the part of teacher is very important, and in case it's missing, the teaching of course is going to be affected in a very, very negative way. Then of course attitude towards children or students or pupil, the third word also, right? तो बच्चों के लिए मेरा एटीट्यूड क्या है? सो डू आई हैव द नेगेटिव वन, डू आई एम आई वेरी प्यूनिटिव? तो हर चीज़ में आई एम गोइंग टू पीनलाइज माई स्टूडेंट्स. आप एक हफ्ते के लिए सस्पेंडेड हो, आप क्लास में नहीं आएंगे, आपने होमवर्क नहीं किया, लेट मी टॉक टू योर पेरेंट्स, स्टफ लाइक दैट. सो माई एटीट्यूड टूवर्ड्स चिल्ड्रन ऑल्सो अफेक्ट द टीचिंग प्रोसेस एज अ होल. क्योंकि अगर आप बच्चों को एक दो बार के लिए नहीं, जस्ट वार्न देम एंड लेट देम बी, they somehow start respecting you, and eventually they may start even listening to you, they may even attend to your classes. So that is another factor. Then the experience. So of course a new teacher won't really be very comfortable in any classroom, probably while delivering any of the lectures, because with experience only you learn things. तो टीचर का एक्सपीरियंस क्या है टीचिंग में will also determine how effective your teaching is going to be. Then administrative policies of the institution. तो आप जिस institution में काम कर रहे हो, जहाँ पे आप पढ़ा रहे हो, उनकी policies ही ऐसी हैं that you are overburdened, you have so much of work, तो you are under constant pressure as a teacher. तो आपकी teaching जो है कहीं ना कहीं affect होती है. आपको लगता है अरे इतने कम पैसे मिलते हैं, मैनेजमेंट दुनिया भर के काम करा रही है, बच्चे क्लास में तो आते नहीं, चलो इन्हें कुछ भी पढ़ा दो, इन्हें नोट्स दे दो, डिक्टेट कर दो, काम हो गया. So that should not happen, but however that's a factor. एक इंस्टीट्यूशन की एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़, आपकी सैलरी, आपको कितना प्रोत्साहित किया जा रहा है आपके वर्क प्लेस पे, ऑल दीज फैक्टर्स डू अफेक्ट द टीचिंग. दैन योर पर्सनल अपीयरेंस, आई मीन इट शुड नॉट आइडियली, बट देन इट डज अफेक्ट द टीचिंग. तो अगर आपकी पर्सनल अपीयरेंस ऐसी है कि आप थोड़े अट्रैक्टिव हैं, आप I'm not talking about being beautiful here, I'm talking about your personality as a whole. So if you have strong control over your personality, if you're properly dressed and then you enter the classroom with full confidence, of course your teaching is effective, because students start looking at you that ways. I know मैं इस क्लासरूम में ये जो हमारा ट्यूटोरियल है, मैं बिल्कुल प्रेजेंटेबल बन के नहीं आती. However, I'm sure that I do have some confidence which might affect this whole teaching process also, that you tend to listen to me. Okay, next is of course methodology, आपका पढ़ाने का तरीका क्या है. And then clear and concise. कुछ टीचर्स होते हैं बात को घुमा फिरा के बोलते हैं, तो दे स्कैटर द टॉपिक सो मच कि बच्चे को समझ में ही नहीं आता. सो डिपेंड्स हाउ क्लैरिटी डू यू हैव ओवर द कॉन्सेप्ट, और किस तरीके से आप उसको डिलीवर कर रहे हो, हाउ कंसाइज एंड टू द पॉइंट यू आर. एंड देन योर पर्सनल नेचर, ऑफ कोर्स वो सब तो प्रोफेशनल एट्रीब्यूट्स हो गए. योर पर्सनल नेचर, दैट डू स्टूडेंट्स फील कनेक्टेड टू यू. कल को बच्चे का कुछ प्रॉब्लम है, सो डू दे फील इनफ कंफर्टेबल दैट दे कम अप टू यू एंड टॉक इट आउट. तो ये सब फैक्टर्स ऑन द पार्ट ऑफ टीचर अफेक्ट अ लॉट ऑफ द होल टीचिंग प्रोसेस. दैट इज द फर्स्ट वन. द सेकेंड वन इन द सेम इज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द लर्नर. पॉइंट सिमिलर है. अब हम एक लर्नर की बात करेंगे. तो अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने पर्सपेक्टिव से सोचिए कि आपकी ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जिससे पूरा टीचिंग प्रोसेस अफेक्ट हो सकता है. ठीक है, वन ऑफ कोर्स योर प्रायर नॉलेज. तो अगर आप ये मेरी वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, आपने रैंडमली पार्ट 5 खोलना शुरू किया, ठीक है, आपने पार्ट 5 का वीडियो देखा, आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी बिकॉज आपने पार्ट 1, 2, 3, 4 नहीं देखा. योर प्रायर नॉलेज अबाउट द सेम सब्जेक्ट इज ईदर पुअर और इट्स द पुअरेस्ट. तो जब तक आपको एक चीज़ के बारे में प्रायर नॉलेज नहीं है, यू हैव नॉट अटेंडेड द प्रीवियस लेक्चर्स, यू मे नॉट बी gaining everything at par with others who've been watching my videos throughout, timely, सीरीज वाइज. ओके, सो प्रायर नॉलेज बच्चे की बहुत फ़र्क पड़ता है कि टीचिंग कितनी इफेक्टिव होने वाली है. सेकेंड इज़ द इंटेलेक्चुअल लेवल. ऑफ कोर्स ये हमने पहले भी डिस्कस किया कि लर्नर का इंटेलेक्चुअल लेवल क्या है. अगर उसका बहुत हाई इंटेलेक्चुअल लेवल है, कुछ बच्चे दे जस्ट
हियर एंड देन दे जस्ट अंडरस्टैंड थिंग्स. कुछ बच्चों का इंटेलेक्चुअल लेवल थोड़ा सा कम होता है कंपेरेटिवली, सो दे नीड मोर टाइम टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट. द इमोशनल फैक्टर, कुछ बच्चे बहुत इमोशनल होते हैं. तो फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ एग्जाम्पल दे रही हूँ. आई एम रिफरिंग टू सर्टन कास्ट और मे बी आई एम रिफरिंग टू समबडीज सोशल बैकग्राउंड, और वो बच्चे उस चीज़ में फिट करते हैं. कुछ ना कुछ सबके अपने पर्सनल यादें जुड़ी होती हैं, तो बच्चे इमोशनल हो जाते हैं, वो उस सोच में डूब जाते हैं. तो जो टीचिंग हो रही है, जो लेक्चर में बताया जा रहा है, तो बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो गए कहीं ना कहीं, तो टीचिंग इतनी इफेक्टिव नहीं रहती. तो ये बच्चे का इमोशनल फैक्टर जो है टीचिंग प्रोसेस को बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करता है. नेक्स्ट इज रेडीनेस. रेडीनेस का मतलब होता है हाउ विलिंग यू आर. सो दे आर सम हु आर जस्ट वॉचिंग द वीडियो, क्योंकि चांदनी मैम वीडियो बना रही हैं. दोज हु आर माई फ्रेंड्स दे जस्ट वॉचिंग इट कि भैया ये क्या बोल रही है. दे आर नॉट रेडी टू लर्न, सो दे लैक द रेडीनेस टू लर्न, टू गेट मोर एंड मोर नॉलेज अबाउट थिंग्स. तो जहाँ पे रेडीनेस ज़्यादा होगी, विलिंगनेस ज़्यादा होगी, वहाँ पे टीचिंग बेहतर होगी. जहाँ पर रेडीनेस कम होगी लर्नर के पार्ट पे, तो उसको समझने में चीज़ों को समय लगेगा. नेक्स्ट इज द फिजिकल फैक्टर. फिजिकल फैक्टर इज बेसिकली अबाउट योर ओवरऑल फिजिकल हेल्थ. कि अगर आप मान लो बीमार हो, यू आर नॉट कीपिंग वेल, और अगर आप माल नरिश्ड हो, हेडेक रहता है, पेट में दर्द रहता है, आपको आपकी नींद पूरी नहीं होती, तो ये फिजिकल एट्रीब्यूट्स क्या करते हैं, कहीं ना कहीं आपके टीचिंग को वीक करते हैं, सॉरी आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल को वीक करते हैं. तो जब आप क्लासरूम में बैठे हो, तबीयत ही ठीक नहीं है, आपकी कमजोरी लग रही है, आपको चक्कर आ रहे हैं, तो ऑफ कोर्स द टीचिंग इज नॉट गोइंग टू बी वेरी इफेक्टिव. इवन दो टीचर अपनी जान लगा देगा, आपको समझ में नहीं आएगा, बिकॉज योर फिजिकल थिंग्स आर पुलिंग यू समहाउ बैक. अटेंशन लेवल, यू आर नॉट अटेंटिव इन द क्लास, यू विल नॉट गेट अ डैम. जिसे कहते हैं ना कख नहीं आता है इसको, तो आप कख नहीं सीखोगे अगर आप अटेंटिव ही नहीं हो. तो ये सब फैक्टर्स जो है लर्नर के पार्ट पे टीचिंग प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं. तो हमने यूनिट 3 के 2 फैक्टर्स कर लिए. टीचर के पार्ट पे क्या क्या चीज़ें होती हैं, लर्नर के पार्ट पे क्या क्या होती हैं. थर्ड वी विल डू इज सपोर्ट मटेरियल. सपोर्ट मटेरियल के बाद है इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़, दोनों को साथ में करते हैं. सपोर्ट मटेरियल में जितनी भी आप नॉन लिविंग चीज़ों का इस्तेमाल करते हो पढ़ाते वक्त, वो सब हो गया आपका सपोर्ट मटेरियल. इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ में क्या हो गया, जिस स्पेस में, जिस एरिया में आप सब सपोर्ट मटेरियल का इस्तेमाल कर रहे हो, वो आपका हो गया इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़. यू हैव टू रियली अंडरस्टैंड बोथ दीज एंड डीमार्केट, क्योंकि अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि ये पर्टिकुलर फैक्टर जो है किस कैटेगरी का है, आपको ऑप्शन में दिया हुआ टीचर का है या लर्नर का है, या ये सपोर्ट मटेरियल में आता है, या ये इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी में आता है. तो अगर एक पर्टिकुलर नॉन लिविंग चीज़ की बात कर रहे हैं जो आपको पढ़ाने में मदद करती है, जैसे किताबें हो गई, प्रोजेक्टर हो गया, इंटरनेट हो गया, तो सब सपोर्ट मटेरियल. जिस जगह पे आप उसका इस्तेमाल करते हो, फॉर एग्जाम्पल आपकी लाइब्रेरी, वो जगह हो गई, तो वो आपकी इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी हो गई. जो आपकी लाइब्रेरी में जो बुक्स होती हैं वो आपका सपोर्ट मटेरियल हो गया. सो नाउ यू एटलीस्ट नो व्हाट इज द डिफरेंस. सो दीज आर द थिंग्स एंड दिस इज द एरिया और द स्पेस वेर इन यू आर टीचिंग, जहाँ पर टीचर भी है, जहाँ पे लर्नर भी है, जहाँ पे सपोर्ट मटेरियल भी है, जहाँ पे इन सब चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है. सो इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी इज बेसिकली द ब्रॉडर वन. नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट इन डेप्थ. ओके, सपोर्ट मटेरियल. सपोर्ट मटेरियल की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर आपके पास किताबें ही नहीं हैं, आपके पास चीज़ें ही नहीं हैं पढ़ने के लिए, आपके पास स्टेशनरी नहीं है अपनी, फॉर दैट मैटर घर में इंटरनेट नहीं है, तो ऑफकोर्स आपका लर्निंग कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रही है. एक बच्चा अगर किसी चीज़ पे आर्टिकल लिख रहा है, उसके पास एक ही किताब है. एक बच्चा जिसके पास उसी सब्जेक्ट पे 4 अलग अलग किताबें हैं, हु डू यू थिंक विल राइट बेटर? सो इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस जो बच्चा जिसके पास ज़्यादा एक्सेस है चीज़ों की, जिसके पास ज़्यादा बुक्स अवेलेबल हैं, जिसके पास ज़्यादा सपोर्ट मटेरियल है. आजकल तो वैसे भी आपको कोई एक चीज़ पे कुछ पढ़ना, आपके पास 50 किताबें हैं, आपके पास इंटरनेट है, आपके पास यूट्यूब में वीडियोज़ हैं. सो दिस इज़ ऑल व्हाट सपोर्ट मटीरियल. सो सपोर्ट मटीरियल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सपोर्ट मटीरियल का एक शॉर्ट भी है जो आपको पता होना चाहिए. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड LTSM. Now what is LTSM? L is learning, T is teaching. So learning and teaching, SM is support material. तो जो भी आप चीज़ें पढ़ने के लिए, सीखने के लिए चीज़ों को रेफ़र करते हैं अपार्ट फ्रॉम योर क्लास लेक्चर्स ऑफ कोर्स, उन सबको हम बोलते हैं LTSM, लर्निंग एंड टीचिंग सपोर्ट मटेरियल. सपोर्ट मटेरियल क्योंकि वो आपको लर्निंग में भी मदद कर रहा है, आपको वो टीचिंग में भी मदद कर रहा है. ठीक है. अब ये LTSM जो है ELTSM के रूप में भी आता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी आता है. तो अगर आप कोई PDF को ये देख रहे हो, या आप कोई वेबसाइट से पढ़ रहे हो, या आप कुछ डाउनलोड कर रहे हो, या आप यूट्यूब ट्यूटोरियल्स देख रहे हो, या कुछ लाइव सेशंस देख रहे हो, ये सब क्या हो गया, ELTSM. E एज ए इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. ओके. नाउ एग्जाम्पल्स ऑफ दिस सपोर्ट मटीरियल आर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं, देन इट कुड बी योर नोटबुक्स.
it could be your research papers, it could be different articles, it could be the newspaper, it could be any kits, it could be any encyclopedia, it could, अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं, आप केसेस देखते हैं तो AIR, जितने भी रिपोर्टर्स हैं आपके, सब आपका सपोर्ट मटेरियल है। आपकी रेफरेंस बुक्स, तो मेन बुक्स के अलावा आप जो बुक्स यूज़ करते हो चीज़ों को रेफर करने के लिए आपकी रेफरेंस बुक्स हो गई, ठीक है। तो ये सब हो गया आपके सपोर्ट मटेरियल। अब ये सपोर्ट मटेरियल जो है आपकी टीचिंग को कैसे अफेक्ट करता है कि पहली बात, जिसके पास, जिस टीचर या लर्नर के पास ये सपोर्ट मटेरियल ज़्यादा होगा तो उसकी टीचिंग ज़्यादा बेहतर होगी, क्योंकि जितने ज़्यादा आपके पास रिसोर्सेज होंगे आप उसको ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आपकी नॉलेज ज़्यादा होगी, आपका कंटेंट ज़्यादा होगा, आपको एक्सपोजर ज़्यादा मिलता है। अगर आपको पढ़ के नहीं समझ में आ रहा तो आप सुन सकते हैं, आप कोई वीडियो चला लेंगे, आप सुन के देख लेंगे उसको, ठीक है। आपको एक बुक की लैंग्वेज अच्छी नहीं लग रही, आप दूसरी बुक को रेफर कर सकते हैं, दूसरी नहीं तो आप तीसरी को भी रेफर कर सकते हैं, तो डिफरेंट वेज। तो ये जो जितना भी सपोर्ट मटीरियल जिसके पास ज़्यादा होगा वहाँ टीचिंग के बेहतर ज़्यादा होने के आसार बहुत हैं। लेकिन जहाँ पे सपोर्ट मटेरियल बहुत कम है, जहाँ पे इसकी एक्सेस ही नहीं है, कहने को मान लो अगर है भी लेकिन आपके पास एक्सेस ही नहीं है, तो भी आपकी टीचिंग कहीं ना कहीं नेगेटिवली अफेक्ट होती है। सो इट शुड बी मोर अवेलेबल एंड all the students and teachers, they must also have access to it also. Okay, so that's about support material. Also you should remember कि आपके पास support material है, आप उसको access भी कर रहे हैं, लेकिन आपको उसका effective use करना नहीं आता। For instance, you have the phone, you have the laptop, you have the computer. Now you are actually watching my video also. Now there are some who might be writing down certain points, जैसे आपको मैंने बोला LTSM एग्जाम पर्पस के लिए इम्पोर्टेंट है, तो कुछ बच्चों ने शायद लिख लिया होगा। तो उन्होंने क्या किया, ये जो सपोर्ट मटेरियल है ट्यूटोरियल, उन्होंने उसका इफेक्टिवली इस्तेमाल कि सपोर्ट मटेरियल और इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी में फ़र्क क्या होता है। सपोर्ट मटेरियल आर बेसिकली, दीज मटेरियल्स आर बेसिकली द नॉन लिविंग स्टफ विच यू रेफर टू, ताकि आपको पूरी टीचिंग बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। तो उसके लिए आप इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, बुक्स का इस्तेमाल करते हैं, रेफरेंसेस बुक का इस्तेमाल करते हैं, एनसाइक्लोपीडिया को रेफ़र कर सकते हैं। तो हमने ये सब एग्जांपल्स करे थे। मैंने आपको ये भी बताया था कि सपोर्ट मटेरियल होने के बावजूद ज़रूरी नहीं है आपकी टीचिंग इफ़ेक्टिव होगी जब तक कि आप उस चीज़ को एक्सेस ना कर पाएँ। अगर आप एक्सेस भी कर रहे हैं तो वो चीज़ें क्वालिटी वाली होनी चाहिए। ये नहीं कि आप एक आउटडेटेड वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे आप इंटरनेट पे पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे आप किताबों से पढ़ाई कर रहे हैं, तो एवरीथिंग हैज़ टू बी अपडेटेड। इट शुड बी बाय अ गुड राइटर। आपकी जो रेफरेंस बुक्स है वो भी क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए। ये नहीं कि आप कुछ आउटडेटेड कंटेंट पढ़ रहे हैं, लैंग्वेज किताब की अच्छी नहीं है तो इवेंचुअली आपकी लर्निंग अच्छी का जो आपको आता है वो भी आपका सत्यानाश हो जाएगा, बुरा ही हो जाएगा। इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़, बेसिकली आप उस सब सपोर्ट मटेरियल को इमेजिन करो जिस स्पेस में, जिस जगह में आप उस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, दोज प्रेमाइसेस, दो स्पेस, दैट एरिया, दैट इज़ कॉल्ड इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी। तो जैसे हमने बुक्स की बात करी, इंसाइक्लोपीडिया की बात करी, रेफरेंस बुक की इस्तेमाल करी, कंप्यूटर की बात करी, सब सपोर्ट मटेरियल है। यूजुअली अगर आप एक कॉलेज या स्कूल में जाएंगे तो ये सब आपको चीज़ें कहाँ मिलेंगी? यू यूजुअली फाइंड इट ऑल इन द लाइब्रेरी, or computers you may also find it in the IT room if there is a IT lab or a computer lab in your institution, excuse me। तो ये सब क्या हो गई आपकी instructional facilities। So wherever you have all the support material laid in front of you, those places are called instructional facility। तो इसमें भी बहुत, जस्ट बिकॉज आपके पास ऐसी कोई फैसिलिटी है जहाँ पे आप सब सपोर्ट मटेरियल रखते हैं, डज नॉट पर से मीन कि आपका टीचिंग बड़ी अच्छी होने वाली है। आपकी टीचिंग ये सब फैसिलिटी होने के बाद भी अफेक्ट हो सकती है इन अ नेगेटिव मैनर। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव अ लाइब्रेरी, द लाइब्रेरी इज़ नॉट वेरी स्पेशियस, छोटी सी जगह है, बड़ी कॉम्पैक्ट जगह है, एसी नहीं लगा हुआ, पंखा छोटा सा चल रहा है। कितने बच्चे हैं हु विल बी वेरी विलिंग टू गो इन साइड एंड स्टडी इन द लाइब्रेरी? तो इवन दो देर इज़ एन इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी, there is access also, people can go also, but then not many are willing to go. Why? Because the space is very compact, the space is not very comfortable, it's not environment friendly, so much so that the students, they want to go and sit in and spend some time there, right? तो क्वालिटी क्या है आपकी इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी की, डिटर्मिन करती है कि आपकी टीचिंग कितनी इफेक्टिव होने वाली है। तो पहला सवाल तो ये है कि आपके पास ऐसी फैसिलिटी है या नहीं, ठीक है। ये फैसिलिटी कब होगी? जब आपके पास सपोर्ट मटेरियल होगा, उसको रखने के लिए आपको कोई जगह चाहिए, ठीक है। उसके बाद वो कैसी है, किस प्रकार की है कि उसको बच्चे इस्तेमाल कर भी पा रहे हैं या टीचर उसको इस्तेमाल कर भी पा रहे हैं। सो दिस ऑल डिटर्मिन्स अ टीचिंग फैसिलिटी। ये तो लाइब्रेरी का एग्जाम्पल है। टॉक अबाउट द क्लासरूम।
कुछ कॉलेजेस में आप जाएंगे, स्कूल्स में जाएंगे, क्लासरूम्स आर सो अमेजिंग. सो they've got the whiteboard, the blackboard, and they have the projectors, they've got air conditioners. तो students really want to come. उन्हें लगता है बाहर का